Good morning, brothers and sisters. सुप्रभात भाई और बहनों। So, today I'm going to share about living the new covenant life. और आज मैं आप सभी से नई वाचा के जीवन को जीने के विषय में बांटना चाहता हूँ। About the new covenant is very dear to my heart because I've found a liberty in my life after knowing the truth about the new covenant in my own life. और मैंने पाया है कि जो नई वाचा है वह मेरे हृदय के बहुत ही ज्यादा करीब रहती है, क्योंकि मैंने इस नई वाचा के जीवन के जो सत्य वचन है इसने मेरे जीवन पे प्रभाव डाला है। Most of what I'm going to share today, I've been sharing, I think, in 2018 and 2019. So now it's almost around 2 years. So some of us were not there at that time. So just going to recap these things again. तो यह जो नई वाचा के जो सत्य है वह जीवन के विषय में मैंने वर्ष 2018-2019 में मैंने बांटा था, और आप में से कुछ उस समय वहां पर मौजूद नहीं थे। तो हम फिर से मैं चाहता हूँ कि इस बात को हम दोहराने पाए। So brothers and sisters, basically, actually we get a understanding or rather a revelation of the truth of God's word. Always, as the word of God says, you shall know the truth, and the truth shall set you free. और भाई और बहनों, मूल बात यह है कि परमेश्वर का वचन जानना, जो परमेश्वर के वचन की सत्य बातें और उसका जो प्रकाशन है, प्रकटीकरण है, वहां पर वचन कहता है कि जब हम सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा। So it is not just an understanding or a knowledge of the truth, but a revelation when it comes as a inner understanding from our heart. Then it sets us free. और न केवल वचन को ये नहीं केवल हमारे ज्ञान और बुद्धि के आधार पर हम इसे समझ लें, परंतु एक प्रकाशन जो हमें परमेश्वर देता है कि हमारे भीतरी जीवन से हम इस बात को ग्रहण करते और समझते हैं। So can you see this? Can you see what's there? Everything is okay? Clear? Yes. So the truth of the new covenant has a liberating effect in our lives. Even though we are born again and thus are in the new covenant, there is a tendency with us to live by the old covenant way of life. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि नई वाचा का जो सत्य है वह हमारे जीवन पर ऐसा प्रभाव डालता है कि वह हमें आजाद करता है, स्वतंत्र करता है, और हम नया जन्म पाने के बावजूद हम नई वाचा में हैं, फिर भी हम पुरानी वाचा के अनुसार हमारे जीवन को बिताते हैं। So the object of this message actually is that we will not live by the old covenant way of life, even though we are born again, but we have an understanding and a revelation of the new covenant and live that life. और हमारा जो उद्देश्य है वह इस नई वाचा के जो सत्य का प्रचार करना, वह यह कारण है कि नया जन्म पाने के बावजूद हमारी यह आदत सी हो जाती है कि हम पुरानी वाचा के तौर तरीकों के अनुसार जीते हैं, लेकिन आए हम इस नई वाचा के सत्य का हमें प्रकाशन हो कि हम उसके अनुसार। So there will be some we'll see some differences of the new covenant and the old covenant, and we'll have to see whether in which our present status is. और हम यहाँ पर कुछ बातों में अंतर को देखेंगे, विभिन्न बातों में देखेंगे कि नई वाचा पुरानी वाचा के बीच में क्या अंतर है, और उसके आधार पर हम नई वाचा को देखेंगे। Okay, so when we talk about the covenant, new covenant and old covenant, a covenant is an agreement. Covenant is an agreement. और हम जब वाचा के विषय में बात करते हैं, नई वाचा और पुरानी वाचा, तो ये जो वाचा होती है दो व्यक्तियों के बीच में या दो समूह के बीच में एक संधि होती है, एक समझौता होता है। So this is an agreement between God and us, man. तो यहाँ पर जो यह समझौता है, यह जो संधि हुई है, यह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हुआ है। Okay, so now we'll see about the old covenant, which is the first covenant which God gave. God made many covenants, but these are the two, we are talking about the two prime covenants that God made with man. The first is the old covenant,
and is the new covenant. और यहाँ पर हम मुख्य रूप से देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के साथ में वाचा बांध दी थी और यहाँ पर हम देखेंगे कि पुरानी वाचा कौन सी और नई वाचा कौन सी है. So when God took the children of Israel from Egypt, when he led them back to the promised land as he was leading them, it was on their way to the promised land that he gave them this old covenant. और परमेश्वर ने जब इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला और उसे वायदे के देश में लेकर जा रहे थे, तो उस मार्ग के दौरान परमेश्वर ने उनसे यह वाचा बांधी थी जिसे हम पुरानी वाचा कहते हैं. Right. So this was when they were in the wilderness of Sinai, and there was a mountain called Mount Sinai. So at that place, God gave them a covenant. और उनके मार्ग में जो पहाड़ पड़ता था, उस पर्वत था, उसका नाम सिनै पर्वत था और उसका वह स्थान जो था, वहां पर सिनै का मरुभूमि था, मरुस्थल था, जहां पर परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी थी. So the living God made a covenant with his special people because of they were Abraham's descendants. अब परमेश्वर ने इजरायली लोगों के साथ में, क्योंकि वे परमेश्वर के विशेष लोग थे, चुने हुए लोग थे, क्योंकि वे अब्राहम के वंश के थे, उनसे वाचा बांधी. And so in Mount Sinai, God gave this in Exodus chapter 19, verse 5 and 6. This is a scripture which we all should keep in mind. और यहाँ पर हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 19 वचन 5 और 6 में पढ़ते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ में वाचा बांधी थी. So in Exodus 19, verses 5 and 6, God says, "Now then, if you will indeed obey my voice," would you read it in Hindi, brother, and we can follow? Yes, brother. और यहाँ पर हम निर्गमन अध्याय 19 वचन 5 में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर ने उनसे कहा, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे. Yeah, read the whole thing. 55 and 6. अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे. समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे. जो बातें तुझे इजरायलियों से करनी है वे यही है. So this is the covenant that God is making with the people of Israel. और यह वह वाचा है जो परमेश्वर इजरायलियों के साथ में बांध रहा था. That if the Israelites would obey His voice and keep His covenant, then they will be a special people among all the people of the world. और तब परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि यदि तुम मेरी सुनकर निश्चय मेरी मानोगे और मेरी आज्ञा का पालन करोगे, तो समस्त पृथ्वी भर में से तुम ही मेरा निज भाग ठहरोगे. So when Moses went and told the people, this is what God said. Now what the people said is that whatever God has said, we will do. और जब परमेश्वर ने मूसा से कहा इजरायलियों के विषय में ये बातें तुझे कहनी है, और मूसा ने आकर लोगों को बताया, तब इजरायलियों ने कहा कि जो कुछ तुमने कहा है उसका हम पालन करेंगे. Then in Exodus chapter 20, God gave them the 10 commandments. और उसके बाद निर्गमन के 20वें अध्याय में हम वहां पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञाएं दी. 10 commandments were given by God, and then from 20 to chapter 20 to 23, we see various laws which God gave them as per the covenant. और वहां पर हम निर्गमन का अध्याय 20 से लेकर अध्याय 23 तक हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने उस वाचा के संबंध में और बहुत सी उन्हें आज्ञाएं बताई. Again, the people said, whatever God says we will do, we will be obedient. और जब ये सारी बातें उनको बताई कि तब भी इजरायलियों ने कहा कि जो कुछ परमेश्वर ने हमसे कहा है हम उसका पालन करेंगे. They were sincere in their heart and they wanted to do, because it is God who said it, they wanted to do, and they said they will do it. उन सभी के मन में एक सिधाई थी और वे परमेश्वर, क्योंकि यह बातें परमेश्वर ने कही थी और वह इस बात का पालन करना चाहते थे. Now, when a covenant is made, it is made with the, by the shedding of blood, the covenant is sealed. और जब कभी वाचा बांधी जाती थी तो वहां पर लहू को बहाकर, लहू लगाकर उस पर एक मोहर के समान उस वाचा पर मोहर लगाई जाती थी. So in chapter 24 we see that Moses wrote all what God had
written. God had spoken. Moses wrote, and it was like a we cannot say it's a book. It's like a scroll, you can say. And then the one animal was slain, and that blood was sprinkled on this covenant. और उसके बाद में हम पढ़ते हैं वहां पर निर्गमन के 24वें अध्याय में कि परमेश्वर ने जो कोई आज्ञा और वाचा पर इस्राएलियों से बांधी थी, मूसा ने उसको लिख लिया था। और हम कह सकते हैं उस समय किताबें नहीं थी, परंतु उसने ऐसे कागज का जो रोल होता है, जो स्क्रोल होता है, उसके ऊपर उसने लिख कर उस पर एक पशु को बलि करके उसके लहू को छिड़क उस वाचा पर छिड़का। So that was how the old covenant was ratified by the shedding of blood. That was the way the old covenant came. और हम पाते हैं कि वह इस रीति से पुरानी वाचा को जब लिख देने के बाद में उस पर मोहर इसी रीति से लगाई जाती थी, एक पशु बलिदान करके उसका लहू उस पर छिड़काव करने के द्वारा, और इस तरह से पुरानी वाचा जो है वो अस्तित्व में आई। Similarly, in the new covenant, when God made a covenant, it was ratified through blood, but now through the blood of Jesus. इसी रीति से परमेश्वर ने जो अब हमारे साथ में नई वाचा बांधी है, उसे भी परमेश्वर ने लहू को छिड़कने के द्वारा मोहर लगाई है और उसे अस्तित्व में लाया, लेकिन आज वह लहू यीशु मसीह का है। So through Jesus' blood, the new covenant was instituted. और यीशु मसीह के लहू से जो नई वाचा है उसको स्थापित किया गया। Old covenant was instituted, ratified through the blood of animal, but the new covenant was ratified through the blood of Jesus Christ. अब पुरानी वाचा जो है वह पशुओं के लहू से मोहर लगाकर स्थापित की गई, लेकिन नई वाचा जो है उसे यीशु मसीह के लहू से स्थापित किया गया। So now the new covenant, remember these verses also very carefully. The new covenant is Hebrews chapter 8 verse 10 to 12 is the covenant. और हम यहाँ पर नई वाचा में कुछ वचनों को देखते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इन वचनों पर ध्यान दें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। और हम इब्रानियों अध्याय 8 वचन 10 से 12 में देखते हैं कि नई वाचा क्या है। Now in the old covenant, the people did not keep the old covenant, so God said, I am making a new covenant with the house of Israel. परमेश्वर ने जो इजरायलियों को पुरानी वाचा दी थी वे उसका पालन नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांधूंगा। Brothers and sisters, all this what God has done was before the foundation of the world. और भाई और बहनों, जो कुछ यहाँ पर परमेश्वर ने करने के लिए ठहराया है वह परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही ठान लिया था। It is not that when the old covenant failed, he did one new covenant. Before the foundation of the world, he planned all these things. ऐसा नहीं है कि पुरानी वाचा असफल हो जाने के कारण परमेश्वर ने नई वाचा को स्थापित करने के लिए उसकी जरूरत को जाना, परंतु यह सब कुछ परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही ठहरा दिया था। It says we are in Ephesians that we were chosen before the foundation of the world. इफिसियों की पत्री में एक ऐसा वचन कहता है कि हम सभी जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर में चुने गए हैं। Some of these things we will not be able to understand with our finite minds. और हमारा जो यह सीमित जो विचार होता है, मन होता है, बुद्धि है, इससे हम इन बातों को ग्रहण नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते हैं। But God made a tremendous new covenant for us. लेकिन परमेश्वर ने हम सभी के लिए एक नई वाचा अद्भुत रीति से परमेश्वर ने स्थापित की है। But the more and more we understand it, our joy will keep on increasing. और जितना ज्यादा हम इस वाचा को समझेंगे उतना ज्यादा हमारा जो आनंद है वह बढ़ता जाएगा। And not only that, it will keep on making our life free. The Bible says we were called to freedom. और यह हमारे जीवन में काफी सारे परिवर्तन को लेकर आएगा। बाइबल कहते हैं कि हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। It says, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. और वचन कहता है कि जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। And God has called us when He actually created Adam. He wanted to have that same freedom Adam had, but because of the fall, he lost everything. और यह जो आजादी, यह जो स्वतंत्रता है परमेश्वर ने आदम के जीवन में भी दी थी, लेकिन क्योंकि वह गिर गया था, उसने पाप कर दिया था, इसलिए वह आजादी उससे ले ली गई। But when God gave the law for man because He wanted to show what sin was,
And because there was no law, that's why the law had to be introduced to show what sin is and what is good and what is bad. इसीलिए यही कारण है कि परमेश्वर ने अपने नियम को, अपनी व्यवस्था को अपने लोगों को दिया, क्योंकि वे बताना चाहते थे कि मनुष्य के जो मन है, मनुष्य है, वह कितना उसके अंदर पाप भरा है, वह कितना पापी है। और तब तक कोई व्यवस्था, कोई आज्ञा नहीं दी गई थी, और तब दी गई कि उसके द्वारा हम जानने पाए। But the law did not bring freedom. लेकिन जो व्यवस्था है वह आजादी को लेकर नहीं आया। But the new covenant gives us freedom. लेकिन नई वाचा जो है वह हमें आजादी देती है। For you were called to freedom, brethren, but it says in let us read Galatians chapter 4. Galatians. Galatians chapter 5 verse 13. और हम गलातियों अध्याय 5 वचन 13 में पढ़ते हैं, For you were called to freedom, brethren, only do not turn your freedom into an opportunity of flesh, but through love serve one another. हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। Yeah. So God wanted us to come back to that freedom which He initially planned. अब परमेश्वर हम सभी के लिए चाहता है कि हम उस स्वतंत्रता को, जिसे परमेश्वर ने आदि से हमारे लिए ठहराया था, हम उस स्वतंत्रता को पा लें। So in Hebrews 8 verse 10 to 12 he says, "For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord." और हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 8 वचन 10 और उसके 10 से 12 में, और यहाँ पर फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि This was initially said in Jeremiah chapter 31. और शुरू में आदि में इसका वर्णन जो है वह यिर्मयाह अध्याय 31 में किया गया। So God had told that many years back, and then when Jesus died, then this new covenant came into being. परमेश्वर ने जो है इस वाचा का जो वर्णन है वह कई वर्षों पहले कर दिया था, लेकिन इसकी स्थापना जब यीशु मसीह आया और उन्होंने अपने आप को बलिदान किया, तब परमेश्वर ने इसको स्थापित किया। So let us read this carefully. I will read it in English once, but please notice this and remember what we read of the old covenant also. और मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन को जब पढ़ें तो ध्यान पूर्वक पढ़ें। मैं पहले इसे अंग्रेजी में पढ़ूंगा और ध्यान पूर्वक हम इस पर ध्यान दें, और यह भी आप स्मरण रखें कि हमने पुरानी वाचा का जो वह वचन था उससे भी पढ़ा था। It says, just translate what I say. I will put my laws into their minds. और मैं अपनी वाचा को उनके हृदय में डालूंगा। Okay, and I will write them on their hearts. और उनके हृदयों पर लिखूंगा। Okay. Then it says, I will be their God and they shall be my people. मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। And they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, Know the Lord. और कोई भी अपने भाई से नहीं कहेगा और कोई भी एक दूसरे को नहीं सिखाएगा कि प्रभु को जाने। For all will know me from the least to the greatest of them. क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सभी मुझे जानेंगे। For I will be merciful to their iniquities. और मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा। And I will remember their sins no more. और मैं उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। Now, if you see this even in this write-up or even in your Bible, you'll find that it says I will is mentioned 5 times. और यदि आप अपने इस बाइबल में इस वचन का जो भाग है, इसे यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ें और आप ध्यान देते हैं, यहाँ पर आप पाते हैं कि 5 बार मैं करके, मैं करूंगा करके वचन वहां पर कहता है। Okay, 5 times God is saying I will. और 5 बार परमेश्वर कहते हैं कि मैं करूंगा। And there is no mention of what we are supposed to do. और यहाँ पर वचन हमें क्या करना है इस विषय में बात नहीं करता। Whereas you will see in this, in the old covenant, it says, if you will do this, there is a condition here, then I will do this.
और यदि हम पुरानी वाचा पर ध्यान दें तो वहां पर वचन कहता है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा। So this covenant which God is making an agreement with us is based. He's telling that He will do this, and I mean, it is the Bible says that it is a better covenant because of better promises. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं नई वाचा के विषय में कि यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनके लिए करूंगा, और यहाँ पर यह जो नई वाचा के जो वायदे हैं यह पुरानी वाचा की तुलना में बहुत ही ज्यादा बेहतर हैं। So when we read this, we'll know that that God says that He will put His laws in our mind. He will write them upon our hearts. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी वाचा उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। And then He'll say He'll be our God, and we will be His people. और वह कहता है कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। That means our closeness with God is the promises our closeness. We have a close relationship with the Father. और यहाँ पर हमारा जो संबंध है परमेश्वर का तो वह करीब का घनिष्ठ संबंध है, और उसकी वाचा उसकी प्रतिज्ञाओं से भी हमारा संबंध। And we don't need any prophet or a pastor or somebody else to teach us about God, because everyone from the small to the greatest can know the living God. और यहाँ पर हमें अब आवश्यकता नहीं कि कोई भी व्यक्ति या कोई पासवान आकर या कोई भी जन आकर हमें परमेश्वर के बारे में सिखाए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि छोटे से बड़े तक सब कोई मुझे जानेंगे। And then He says that He will be merciful to us and will not remember our sins anymore. और वह कहता है कि वह हमारे अधर्म हमारे पापों के विषय में दयावंत होगा और वह हमारे अपराधों को फिर स्मरण न करेगा। So these are tremendously wonderful promises for us, and Jesus is the one who instituted this new covenant. और ये बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर हमसे कहते हैं, और इस नई वाचा की स्थापना परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा की। So it says about Jesus that in Galatians chapter 4 verse 4. और हम गलातियों अध्याय 4 और वचन 4 में पढ़ते हैं। It says, in the fullness of time God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. और हम पढ़ते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। So Jesus, who gave the law to the people, came as a man and was under that law. और यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि उसके समय के लोगों में वह मनुष्य से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। And He who made the law kept the law. और उसने जिसने उस वाचा को बनाया उसने उस वाचा का पालन भी किया। It says in Matthew chapter 5 verse 17. और मत्ती अध्याय 5 वचन 17 में वचन कहता है, Do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill. यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। So Jesus, when He lived on this as a man, he was without sin. He kept the law, fulfilled the law. और यीशु मसीह ने जो जिन्होंने कोई भी पाप नहीं किया था, मनुष्य रूप धारण किया था, उन्होंने उस वाचा का उस व्यवस्था का पालन किया और वे निष्पाप रहे। And now he has come into our lives, and this is what He will do. और अब वह हमारे जीवन में आ गए हैं और वह आगे इस कार्य को करेंगे। It says in Romans chapter 8 verse 2 to 4. और अब यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं रोमियो अध्याय वचन 2 से 4। For the law of the Spirit of life in Christ has set us free from the law of sin and death. For what the law could not do, weak as it were through the flesh, God did, sending His own Son in the likeness of sinful flesh as an offering for sin. He condemned sin in the flesh, in order that the requirements of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. और रोमियो अध्याय 8 वचन 2 से 4, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया,
क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। So, in order that the requirements of the law will be fulfilled in us, ताकि जो व्यवस्था की जो बातें हैं, जो जरूरतें हैं, वह हमारे अंदर पूरी की जाए। take for instance in the Ten Commandments it says, "Do not steal." और जैसे हम 10 आज्ञा का उदाहरण लेते हैं, उसमें एक आज्ञा है जो कहता है कि चोरी न करना। Israelites had to keep that law because it was written on the tablets of stone or on the scroll. They said, "Oh, we are not supposed to steal." So uh, they had a commandment outside. और इजरायली जो है वे ऐसा सोचते थे कि हम चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो आज्ञा है वह परमेश्वर ने दिया हुआ पत्थर की पट्टी के ऊपर लिखी गई है, या जो वो स्क्रोल होता है उस पर लिखा हुआ है, तो हम यह नहीं कर सकते। But when we receive Jesus Christ into our life, that law is written in our heart. लेकिन जब हम यीशु मसीह को हमारे हृदय में ग्रहण करते हैं, तो वह जो व्यवस्था है, वह जो आज्ञा है, वह हमारे हृदय पे लिखी जाती है It is written in our mind also. और वह हमारे मनों में भी डाली जाती है। It is no more something written outside. और अब यह ऐसा नहीं कि कुछ बाहरी तौर पर लिखा हुआ है। And God has given us the Holy Spirit so that not only we don't want to steal, but we don't want to do anything near about that. और अब परमेश्वर ने उसका पवित्र आत्मा हमें दिया है कि हम ना केवल सिर्फ चोरी करना नहीं चाहते हैं, परंतु उससे आसपास की जुड़ी कोई भी बात या काम को हम नहीं करना चाहते। The Bible says in the old it was written, "You shall not kill," but I say, do not get angry. अब पुरानी वाचा में ऐसी आज्ञा दी गई थी कि तुम हत्या न करना, लेकिन नई वाचा में कहा गया है कि तुम क्रोध न करना। So in our heart it is already written that not only about killing, but for us that anger itself is something wrong. और अब यह बात जो है वो हमारे हृदय पर लिखी हुई है कि न केवल हम किसी के हत्या का विचार भी करने पाए, परंतु हम उसके दूसरे व्यक्ति के प्रति क्रोधित भी ना हो। God has given us promises like sin shall not have dominion over us because we are not under the law that you should not be angry, you should not do this, not that way, but we are under grace. That grace is available for us to overcome. और अब परमेश्वर ने हमें नई वाचा की अधीनता में लाया है, जहाँ पर उसने बहुत अच्छा अद्भुत वायदा प्रतिज्ञा हमसे की है कि तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। और यहाँ पर व्यवस्था के अधीन होना यानी कि तुम्हें हत्या नहीं करनी है, लेकिन हमें क्रोधित भी नहीं होना है, और यह कार्य करने के लिए परमेश्वर ने उसका अनुग्रह दिया है। So brothers and sisters, the standard of life that God has given us is much higher than what the old covenant people had. और भाई और बहनों, जो अवसर, जो सौभाग्य हम सभी को दिया गया है उस स्तर के जीवन को जीने के लिए, जो कहीं गुना ज्यादा ऊंचा स्तर और बेहतर है तुलना में पुरानी वाचा के लोगों के। So by the grace of Jesus Christ, because of what He did for us, we will have the ability to fulfill the law in not only in letter but in the spirit also. परमेश्वर ने अब हमें सहायता की है यीशु मसीह के द्वारा कि हम न केवल शब्दों के द्वारा ही उसकी उन आज्ञाओं का पालन करने पाए, परंतु हमारे मनों के द्वारा भी। My whole talk today has gone in only introduction. और आज का जो मेरा जो बोलना था, बांटना था, वह केवल इस जो आज का विषय था उसके संबंध में शुरुआती कुछ बातों को बताने में ही था। This is just the third slide out of many. और यह जो है वो तीसरा स्लाइड है out of many. और बहुत सारी बातों में। I think we'll have to take one more session to complete it. और मुझे लगता है कि एक और हमें इसके विषय में एक सत्र और लेना होगा, जिसके द्वारा हम इसे समाप्त कर पाएंगे। But as an introduction, I just want to continue saying. और जैसा कि मैं इसके बारे में आप सभी को बता रहा था, और मैं कहना चाहता हूँ that the new covenant is basically as we saw, as you see the slide before you, that God is the Bible says in Philippians chapter 2 verse 13,
God is at work in us, both to will and to work for His good pleasure. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि नई वाचा के विषय में जो कुछ हमने बातों को देखा और आपके सम्मुख भी जो स्लाइड है जिसके विषय में वचन कहता है फिलिपियों के अध्याय 2 और वचन 13 में कि परमेश्वर ही है जो अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। He has not left us alone to be faithful, but He said God is faithful. He will not allow us to be tempted or tested beyond our capacity. It's everything that in this new covenant, it is that God is there with us in everything. Without God, we are under the old covenant. Anything we do without God is the old covenant way. और यहाँ पर परमेश्वर ने हमें उनका नया वाचा दिया है और परमेश्वर जो भी बातें हैं परमेश्वर नहीं चाहते कि हमें अकेला छोड़ दिया है कि हम विश्वास योग्य रहें, परंतु वचन कहता है कि वह हमें इन बातों को पालन करने में मदद करने में वह विश्वास योग्य है। और जो कुछ भी बात जिसमें जो कुछ भी हम करते हैं यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं वह पुरानी वाचा की बातें हैं, वह पुरानी वाचा है। Just two things more I want to say. One is that in the new covenant, God has given us the privilege of directly going to Him, which was not available in the old covenant. और दो मुख्य बातें मैं आपको नई वाचा के विषय में बताना चाहता हूँ। पहली मुख्य बात कि नई वाचा के वाचा में जब हम आते हैं एक बहुत बड़ा सौभाग्य, एक अवसर जो परमेश्वर ने हमें ऐसा दिया है कि हम सीधे हम परमेश्वर के साथ में संपर्क करते हैं, हम उसके साथ में जुड़ सकते हैं। यह सौभाग्य, यह अवसर पुरानी वाचा में नहीं था। Right into His throne room we can go. कि उसका जो सिंहासन है उस महिमा में सिंहासन के उस स्थान में हम प्रवेश कर सकते हैं। It is not an easy thing. It's not a simple thing to go before a holy God. और यह कोई आसान बात या कोई आसान मामूली सा काम नहीं है कि एक परम पवित्र परमेश्वर के सामने जाना। It is impossible. यह असंभव है। But He has made it possible for each one of us. लेकिन परमेश्वर ने हम सभी के लिए इस काम को एक संभव बनाया है। In the old covenant, only the priest could go there once a year. और जो महायाजक था पुरानी वाचा में वह केवल वर्ष में एक ही बार उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाता। And if he did not go in the proper way, he would be dead there. और यदि वह अपने सही रीति और रीति के अनुसार यदि वह प्रवेश ना करे तो वह वहीं पर मर जाएगा। But today, because this is the great thing, because of what Jesus did, that is the amazing thing which is so much there to talk about what Jesus did. Because of that, we have got an entrance right just to say directly call Abba Father. लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ किया है और बहुत सी बातें हैं जो इसके विषय में हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके द्वारा हम सीधे परमेश्वर के सामने हमारी पहुंच होती है। So brothers and sisters, what Jesus did is not just to die for our sins. और भाई और बहनों केवल यीशु मसीह ने इतना ही नहीं किया है हमारे पापों के लिए, वे स्वयं बलिदान हुए। Many times we only think about that Jesus died for our sins. No, He came to give this new covenant and this wonderful life which becomes ever increasingly brighter. और भाई और बहनों न केवल यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान होने आया परंतु हमें वो नई वाचा का जीवन देने आया, नई वाचा में हमें प्रवेश कराने के लिए आया जो हर समय दिन भर दिन वह प्रकाशमान होता रहता है। It's a life without any struggle. और यह ऐसा जीवन है जिसमें संघर्ष नहीं होता। I remember many years of my life, I have lived faithfully, tried to be faithful, but there was always a struggle, or there was not the freedom which I have now. और भाई बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं भी अपने जीवन में इस जीवन को जब जी रहा था मैं परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य जरूर था, लेकिन मेरे जीवन में कई सारे संघर्ष मुझे करने पड़े। So I want to end this by saying that there is a great there's a great truth in knowing the new covenant. और भाई बहनों समाप्त करने के साथ में मैं यह शब्द आपसे कहना चाहता हूँ कि नई वाचा को जानना यह एक महान सत्य है। I've just touched about 10% of what I wanted to say. और मैंने केवल 10% ही हाथ लगाया उस बात को जो मैं आज आप सभी के साथ बांटना चाहता था। Another session will speak about the differences between the old and new covenant, which I wanted to really bring about today.
और जो अंतर है वास्तव में नई वाचा और पुरानी वाचा के बीच में, जिसे मैं आज आपके सभी के सामने लाना चाहता था। But yeah, so I want to encourage you to meditate on these uh, uh, two passages and see what God wants to speak to you. मैं चाहता हूँ कि वचन के ये दो भाग हैं, इस पर आप अध्ययन करें और मनन करें और देखें परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहते हैं। Thank you, Brother Matthew, for touching on this important topic of Old Covenant and New Testament, difference between both of them. धन्यवाद भाई मैथ्यू कि आपने इतने जो जरूरी जो विषय है, जो नया करार और पुराने करार में क्या अंतर है उसके विषय में हमें बताया। From my life, I was reminded of certain things pertaining to agreement, covenant, how this in practical life, how I was reminded of certain things I'd like to share. और मेरे जीवन से भी मैं कुछ बातें बांटना चाहता हूँ जो मुझे स्मरण आई जब भाई मैथ्यू बता रहे थे ये नए करार, पुराने करार और ये जो समझौता है, इन शब्दों के द्वारा मुझे क्या स्मरण आ रहा है वो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। Sometime back, me and my father had bought a property which was both of us, I mean, me and my father's name. The agreement was between us, both of us. कुछ समय पहले हम लोगों ने एक जायदाद ली थी और वह जायदाद मेरे और मेरे पिताजी के की साझेदारी पर थी। हम दोनों का उसमें बराबरी का हिस्सा था। But after some years later on, my dad thought of giving that property, his surrendering his 50% of stake in that and making me the owner of 100% owner of that property. और कुछ समय के बाद मेरे पिताजी को ऐसा विचार आया कि वह जो अपना हिस्सा है वह उसको पूरी तरह से दे देंगे और मुझे उस जायदाद का पूरा मालिक बना देंगे। But again, you can't just do that without doing a covenant or doing an agreement with the Maharashtrian law of Land Act or whatever they call it. You have to go to the registrar and sign the documents and make a gift deed or something like that. A deed or a document agreement that needs to be made, and that we had to do it to so that I can become the 100% owner of that property. और ऐसा करने के लिए इतना भी आसान नहीं है क्योंकि हमें जो महाराष्ट्र की सरकार है उसमें जो भी नियम है उसका पालन करना होता है और फिर एक दूसरे को उपहार देने के लिए जो समझौता है उस पे भी वो दस्तावेज बनाकर उसमें साइन करना, ऐसे बहुत सारे चीजें होती हैं जो करनी होती हैं। So now we have done that gift deed and I am the full owner of the property. What was striking to me was today's message is that just like God has abolished the Old Testament and given us the New Testament by himself, writing the laws, the righteous requirement of laws not outside, something on the stone, that is the Old Covenant, but something written down inside our heart so that we can obey it from our heart. It should not be a burden. और आज के समय में जो जैसे हम भी सुन रहे थे कि पुराने करार और नए करार में जब ये अंतर की बात हो रही थी तो उसमें भी ऐसा ही है कि हमें कुछ करने की उसमें आवश्यकता नहीं थी। उसमें परमेश्वर ने खुद ही हमें पूरा वारिस बना दिया अपने उस जायदाद के और हमारे हृदयों पर अपनी वाचा को लिखा। Yeah, just like that, I can just like my father gave me made me the full owner of my property. I can do whatever I want to that, whether stay there, whether give it to rent, or whether sell it and take the money, go away, do whatever I want. I'm free to do whatever I want in that property. और जैसे कि मेरे पिताजी ने अब मुझे पूरा वारिस उस जायदाद का बना दिया है तो अब मेरे पास पूरा अधिकार है कि मैं उस जायदाद के साथ क्या करूं। मैं उसको किराए पर दे दूं, मैं उसमें जाकर रहूं या फिर मैं उसके पैसे से उसको बेच दूं, कुछ भी ऐसा मेरे करने के लिए मैं अभी आजाद हूं। Yeah, I can sell it. I can buy a new property instead of that one somewhere else. I can give it to on rent or anything. I can have full access. What I'm trying to say is that what God has done in the new covenant, he has opened up a way to enter into the truths that we hear in the new covenant, the most holy place, enter with free access through the blood of Jesus, and I can enjoy his presence like an heir.
तो जैसे कि मैं अभी आजाद हूँ, उस जायदाद के साथ जो भी करना चाहूँ उसको बेच के मैं दूसरी जायदाद भी खरीद सकता हूँ, उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी हमें पूरी आजादी दी है और हमें अपने उस विरासत का एक वारिस बनाया है, और हम अभी आजाद हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। Condition is that that seal which Brother Matthew talked about, that is the blood of Jesus. We have to accept him. We have to apply that to our life. We have to have faith in God's working. Then, and the Holy Spirit cleanse me, washing off his regeneration, gives me a new life, a salvation, he makes a way of salvation. Then only I'm eligible, or I have the right to enter into his presence. So yeah, important thing is to believe in Jesus and go in him, go by his name. That's why we always pray, in him we ask. It's only through Jesus, the seal of that promise, that we have to take his blood. तो परंतु इसमें एक शर्त है, वह शर्त है पर जैसे कि भाई मैथ्यू भी बांट रहे थे, उसमें एक थप्पा होना चाहिए, और वह थप्पा है यीशु मसीह के लहू का, और उस लहू के द्वारा ही और यीशु मसीह पर विश्वास करके ही हम उस वाचा का एक वाचा पे चल सकते हैं और उसका वारिस बन सकते हैं। ओके, प्रभु की स्तुति हो। आज भाई मैथ्यू के द्वारा एक प्रोफेटिक वर्ड सुनने मिला हमें। Praise be to God that through Brother Matthew we could hear a very encouraging and prophetic word. एक नया करार की जीवन जीने के बारे में भाई एक अच्छी तरह से हमें उदाहरण के तौर पर समझाया। Brother Matthew told regarding living a new covenant life, and he explained it very nicely. जर्मिया 31-34 में लिखा है कि सबसे बड़ा 2 आशीष का वचन वहां पर लिखा गया है। जर्मिया 31-34 and a very a blessed verse is mentioned in Jeremiah 31 verse 34. और नबी जर्मिया और यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, उसकी क्रूस पर जाने के बारे में, ये सब पहले ही बताया गया है कि जर्मिया 31 में देखा जाएगा तो को एक समय आने वाला है। वो समय ये है कि यीशु मसीह मृत्यु के बाद उसकी लहू जो हमारे लिए देने वाला था, ये सारी बातों पहले ही उसने इस वचन में बताया गया। So there it is mentioned regarding the blood of Jesus, and that he will be going to shed, and it is mentioned regarding that beforehand only. So वो 2 सबसे बड़ा आशीष का 2 वचन मैं बताना चाहता हूँ, याद रखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। And I want to share 2 blessed verses, and please remember these verses, my brothers and sisters. 2 चीज आप हमेशा याद रखें अपने जीवन भर। 2 signs you always remember throughout your life. 34 जर्मिया 31-34 मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा का यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेगी। ये पहले आशीष। And it is mentioned in Jeremiah 31 verse 34, they will not teach again each one his neighbor and each one his brother, saying, know the Lord, for they will all know me, from the least of them to the greatest of them. And this is the first blessing. ये याद रखें कि ये पहले आशीष है कि हम छोटे से लेकर बड़े तक सब परमेश्वर को एक व्यक्तिगत रूप में जान पाएंगे। And please remember that that from the least to the greatest, all of us will be able to know the Lord. या जुना करार में ऐसा था कि लोग मंदिर में जाते थे, वहां पर एक प्रीस्ट प्रचार करते थे, वो सुनते थे और वो मन में रखते थे, वापस आते थे, वापस नेक्स्ट टाइम जाते थे, आते थे। लेकिन अभी जब नया करार में ये आशीष का वचन हम पढ़ेंगे थे कि छोटे से बड़े तक सब अपने मन में रखेगा प्रभु का वचन। And in the old covenant we see that the people used to visit temples, and they would come in contact with the priest, and then the priest will offer prayers for them. But it is not like that in the New Testament, because all the people from the least to the greatest all will know the Lord.
इसका कारण यह है कि वो जुनी करार की तरह नहीं है, जो आज्ञाओं को जो पत्रों पर मूसा को दिएगा वैसा नहीं है, लेकिन वो आज्ञा हमारे हृदयों में, हमारे मन में प्रभु हमें लिखेगा। And it is not like in the Old Testament when the Lord gave to certain people the old covenant, but it is like that the new covenant will be written in our hearts and in our minds. और दूसरी आशीष है, मैं बताना चाहता हूं कि उसी में लिखा है कि 34b, क्योंकि मैं उनका अधर्म को क्षमा करूंगा, उनकी पाप फिर स्मरण ना करूंगा। 34b पार्ट सिस्टर। Yeah. So the another blessing I would like to mention, it is mentioned in the same verse, Jeremiah 31 verse 34. For I will forgive their wrongdoing and their sin I will remember no more. यहाँ पर लिखा है कि सबसे परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप में जानना एक सबसे बड़ी आशीष है। दूसरी है कि परमेश्वर हमारे पापों को कभी स्मरण नहीं रखना चाहता है। To know the Lord in a very personal manner, this is the first blessing, and the second blessing is that all our sins, none of our sins the Lord wants to remember. So brothers and sisters, 2 Corinthians 3 to 11 अगर पढ़ेंगे, एक बार खोलेंगे 2 Corinthians 3 chapter. So brothers and sisters, if we open chapters, 2 Corinthians chapter 3 to 8 अगर हम पढ़ेंगे, from verse 3 to 8 if we read. So वहां पर लिखा है कि वचन 3 से पढ़ेंगे। So we will read from verse 3 onwards. Sister, can you read? Yeah, brother. Revealing yourselves that you are a letter of Christ, delivered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Such is the confidence we have towards God through Christ. Not that we are adequate in ourselves so as to consider anything as having come from ourselves, but our adequacy is from God. Till yes, बस sister, thank you. और इस वचन में हमें बताता है कि जो जुनी है, जो नियम है, जो लॉ है, उस पत्रों पर लिखा है जो मूसा के द्वारा दिया गया है। In these verses, it is told to us that the law is written on the stone tablets which were given to Moses. और लिखा है कि वो एक इंक के थ्रू लिखा गया है। And it is further mentioned that the law is written through ink. लेकिन नया जो है हमारे हृदयों पर लिखा रहेगा। But the new one will be written on our hearts. और जुनी ऐसी है कि लोगों को एक गुनहगार बनाने का नियम है। In the old, it is to make people and to condemn them. But नया जो है हमें निर्दोष करने का नियम है। But in the new one, it is to make us blameless. और जुनी जो है वो खत्म होते जाएगी, लेकिन नया जो है वो हमेशा के लिए रहेगा। Will be abolished, but the new one will remain forever. और जुनी में महिमा है, जुनी करार में महिमा है लेकिन थोड़ी है, लेकिन नया करार में जब आते हैं, नया करार की महिमा जुनी करार के महिमा से बहुत अद्भुत है। There is some glory in the new covenant, but if we come to the new covenant, the glory is much more than the old one. जैसे बता सकता है कि जुना करार में थोड़ी सी महिमा है, जैसे कि मूसा ने उस पर्वत से नीचे आया और उसने उसकी चेहरा जब लोगों को दिखाया, लोग उस चेहरे को देख नहीं पाए क्योंकि उसके मुंह महिमा से चमक रही थी। The glory in the new covenant we see that when Moses came down from the Mount of Sinai, that time his face was full of glory, and such glory that people could not look into his face directly. इसका मतलब है जुना करार खराब नहीं है, जुना करार में महिमा है, लेकिन उससे बेहतर महिमा हम नया करार में देख सकते हैं। So we see that the old covenant is not actually a covenant, but there is a glory in that covenant, but there is more glory in the new one. या रोमन्स 7 में लिखा है, पौलुस भी कहता है कि वो जुनी नियम के कारण, वो लॉ के कारण मैं क्या हूं, मेरा हालत क्या है, मुझे पता चला।
in Romans 7, Paul says that through the old covenant, I could actually realize where I stand. या वो जुना करार कोई गलत नहीं है, उसके द्वारा मेरा हालत पता चला. There is nothing wrong in the old covenant. Through that, I could actually examine my position. उसके द्वारा मैं पापी हूं करके मुझे समझ में आया. And I could really realize that how big a sinner am I. और जुना करार मुझे बचा नहीं सकती है. But the old covenant in itself cannot save me. बट जब मैं नया करार में मैं यीशु को नजदीक से जानूंगा, यानी मैं हर दिन उसकी संपूर्ण मन से, दिल से उसकी जानूंगा, उसके बारे में सुनूंगा, उसकी संपूर्ण मन से सेवा करूंगा, उसके संपूर्ण मन से मैं प्रेम करते रहूंगा, मैं परमेश्वर के करीब रहूंगा. But in the new covenant, when I will know the Lord personally and day and night serve the Lord and be very near to God, that time I will know him. So brothers and sisters, बहुत आसान है, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है. अगर हमें इस मसीह जीवन जीने के लिए अगर मुश्किल होता था, तो परमेश्वर ये पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है हमें? So brothers and sisters, it is now very easy because we have been given a Holy Spirit, and the reason we have been given is because without that Holy Spirit, it is not possible to live a new covenant life. परमेश्वर हमारी पूरी चरित्र जानते हैं, हमारी आदि से अंत तक जानते हैं, इसलिए हमें क्या जरूरी है उसको पहले ही पता. इसलिए वो जाने से पहले उसने कहा कि मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा. And the Lord knows all our condition and the exact position where we lie, and that is the reason that he gave us his Holy Spirit before he left this earth and said that I am giving you a helper to help you. जब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप प्रभु को और जानोगी, और प्रेम करने लगेगी, और प्रभु के साथ सहभागिता करते रहोगे. When the Holy Spirit will come upon you, then you will love the Lord more, and you will have a fellowship with the Lord more and more. कुछ सोच रहा था कि परमेश्वर हमको फिर पुराने नियम में इतना सारा व्यवस्था हमको क्यों दिया है, ताकि मैं जान सकूं कि मैं कितने बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा गुनहगार हूँ, और ये कह सकूं फाइनली कि प्रभु मैं तेरे व्यवस्था को अनुसार मैं जी नहीं सकता. परमेश्वर इसलिए व्यवस्था दिया है. और मैं देखता हूँ कि परमेश्वर का जो हम सुने न्यू कॉवेनेंट के बारे में भी, परमेश्वर हमारा वचन हमारा माइंड में डालता है, हमारे हृदय में लिखता है. इसका मीनिंग क्या है, हम क्या समझते हैं इस चीज को. बट मैंने देखा कि मैं मेरे जीवन में मैं एक टेस्टिमनी के रूप में बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को मैं माफ नहीं कर पा रहा था, माफ कर रहा था बट दिल से माफ नहीं कर पा रहा था. बट जब वो व्यक्ति सामने आता था तो मैं उसके बारे में मैं सोचा कि कोई ना उसको कोई बुरा बोले, उसको कुछ बुरा हो. मैं बोला, जब मैंने वचन पढ़ा कि अगर तुम उस भाई को दिल से माफ नहीं करोगे तो परमेश्वर भी मुझे माफ नहीं करेगा, या तुम्हें माफ नहीं करेगा. जब मैं पढ़ा तो मेरे को बहुत शौक होगा. प्रभु मेरा मन में तो उसके प्रति बहुत सारा गुस्सा है, बहुत सारा रॉन्ग एटीट्यूड है. बट मैं देखा कि प्रभु मैंने यह असंभव है, मैं नहीं कर सकता. ये स्थिति में जब मैं आया, बोला प्रभु मुझे प्लीज प्रभु मुझे मेरा मन में लिखो, मेरे हृदय में लिखो कि मैं इस भाई को माफ कर सकता. मैं नहीं कर सकता. मैं यहाँ तक पहुंच गया कि प्रभु मैं नहीं कर सकता हूँ. बट जब मैंने देखा इसका परिणाम क्या हुआ पता है, सब परिणाम ये हुआ कि उस भाई को मैं माफ कर पाया दिल से. उस भाई के साथ में फेलोशिप कर पाया, उस भाई के साथ में जाकर बैठकर मैं चाय पी, मैं उसको बाहर लेके गया, चाय पिए हम. मेरा प्रभु धन्यवाद, ऐसा मुझे एक हार्ट दिया कि उस भाई से मैं प्रेम करूं, ना कि नफरत. तो परमेश्वर, और मुझे कोई एफर्ट नहीं किया मैंने, नहीं इस भाई को, अभी अगर आज मुझे कोई मेरे खिलाफ कुछ करेगा तो मैं एफर्ट नहीं करूंगा, इस भाई को माफ करूंगा, मेरे में माफ वैसे में क्या लिखा है मैं नहीं देखूंगा. बट ऑटोमेटिकली प्रभु हमको वो व्यवस्था हमारा मन में, हमारा माइंड में लिखा है, वो हमको ऑटोमेटिक हमको डिजायर देगा
और इच्छा देगा कि हम उस भाई को माफ करें। लॉर्ड फॉरगिव मी। और मैं बताना चाहता हूँ कि उतना ही नहीं, परमेश्वर मेरे दिन ऐसा काम किया कि जो भाइयों ने मेरे खिलाफ जो कुछ किया है, मुझे याद भी नहीं बहुत सारा चीज उन्होंने ऐसे से। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज में। ये परमेश्वर ही कर सकते मेरे प्रिय भाई। और मैं प्रभु को इस चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ। परिणाम ऐसा हुआ, वो व्यक्ति जो मेरे साथ नफरत मैं जिससे मैं नफरत करता था, वो व्यक्ति रिटायर्ड हो गया। और रिटायर्ड होने के बाद घर पे बैठकर वो रो रहा था। क्यों रो रहा था? कि मैंने विजय के साथ मैंने क्या क्या किया, ऐसा गलत किया मैं। तो जब उसने मुझे फोन किया तो बता रहा था विजय मैं घर पे बैठ कर रो रहा था। बोला क्यों अंकल? मैं बोला कि तेरे साथ मैंने बहुत गलत किया। तो मैं बोला प्रभु ये सब तेरा काम है, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा चीज हमारे जीवन में हम नहीं कर सकते। तो परमेश्वर चाहता है कि तुम मत करो, बट परमेश्वर चाहता है कि विश्वास करो तुम इस चीज पर। तो मैं परमेश्वर हमारे जीवन में माइंड में डालेगा और वचन हमारे हृदय में लिखेगा। और परमेश्वर एबिलिटी देगा हमको, और योग्य देगा कि हम उस चीज पे विजय पाए। तो मैं ये एक नया नियम है। और जैसे कि मैंने सुना, इसके अंदर मैं फुल फ्लो होना चाहता हूँ। तो मुझे और भी रेवलेशन दो, मुझे रेवलेशन दो, ताकि इस तरह रोज मैं जी सकूं दिन प्रतिदिन एक न्यू कवनेंट लाइफ। और ये कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है। प्रभु में कुछ गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, मुझे ये करना है, ये करना है, नहीं। परमेश्वर तुम्हारे अंदर से वो बहेगा। एफर्ट नहीं करेगा, अरे यार मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, बट वो बहेगा अंदर से। अब परमेश्वर तुमको योग्य देगा। मैं प्रभु को इस जीवन के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ऐसा जीवन देने के लिए, ऐसा जीवन मुझे देने के लिए। और रियली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज ये सुनकर। मैं जब ये न्यू कॉन्वेंट के बारे में सुनता हूँ, मेरे को बहुत एक्साइटेड लगता है कि प्रभु ने ऐसा जीवन हमको दिया है यीशु मसीह के द्वारा, उसके विश्वास करने के द्वारा। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। Living according to the new covenant. और नई वाचा के अनुसार जीवन जीना। First of all, when we speak about the old covenant, we should remember that when the Israelites were saved by Moses, when they were saved, and after that, there was a law that was given to them that they need to follow it, and they had to follow it according to what it was written. और जब परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र देश से निकाल कर उनको बचाया, तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें एक वाचा दी, उन्हें एक व्यवस्था दी, जिसका पालन, जिसमें उसमें जो कुछ लिखा था उन्हें उसका पालन करना था। So when the tablet was given and when the Israel had to follow it, it means that was the old covenant that was given by God to the Israelites who were saved. इसका मतलब है कि जो कुछ आज्ञा परमेश्वर ने उनको दी है, उसका पालन उन्हें करना था, वह पत्थर की पट्टियों पे लिखी बातों का, क्योंकि यह परमेश्वर ने उनसे कहा था। But they couldn't keep it. You know why? Because they had to follow it, and because of following for what was written, and they were following according to the flesh. और वे इस बात का, उस व्यवस्था का जो आज्ञा उनको दी थी, उसका पालन करने में पूरी तरह से नाकाम हो गए, असफल हो गए। और कारण यह था क्योंकि उनसे वो लिखी हुई बातों, जो बाहरी तौर पर लिखी हुई बातें थी, उससे उनका पालन करना था, और वे शारीरिक रूप से उसको पालन करने का प्रयत्न कर रहे थे। So God decided to demolish the covenant that was given to Israel by making a new covenant, by sending his only son to fulfill the covenant that was given. और तब परमेश्वर ने ठाना कि वह जो पुरानी वाचा है, परमेश्वर उसको पूरी तरह से रद्द कर दे, उसका नाश कर दे, और अपने पुत्र को भेजकर वह एक नई वाचा की स्थापना करे। So Jesus came and demolished the old covenant by crucifying himself, breaking himself up completely, giving himself till death, and that's the time when the old covenant was destroyed. But the new covenant came when Jesus was rose again. और मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने यीशु मसीह जब अपने आप को बलिदान किया, मृत्यु तक उन्होंने अपने आप को बलिदान होने के लिए सौंप दिया था, और उनके मृत्यु के द्वारा उन्होंने पुरानी वाचा को जो वो पूरी तरह से नष्ट किया, नाश किया, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान, जी उठने के द्वारा उन्होंने नई वाचा की स्थापना की। That's why in that new covenant that's given to us, that now
the flesh has become the spirit. इसलिए नई वाचा में जो यीशु मसीह ने हमें दी है, अब हम शारीरिक रूप से नहीं परंतु हम आत्मा के द्वारा उसमें जीते, So that we don't live according to the flesh, but we live according to the spirit. This is the new covenant. ताकि हम हमारा जो जीवन है वह शरीर के अनुसार नहीं जिए परंतु हम आत्मा के अनुसार जिए, और यही नई वाचा है। Brother, 2 Corinthians chapter 3, verse 3 और 4, please. 3 और 6. 2 कुरिन्थियन 3 का 3 verse 3 verse 6. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 3 और वचन 6, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। 6वां वचन, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। So who has made us sufficient to be minister of a new covenant, not by the letter, but of the spirit? For the letter kills, but the spirit gives life. और 6वां वचन जो हमने पढ़ा, Yeah, brother, good. कि नहीं, हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है आत्मा जिलाता है। I read another scripture. It's from Romans chapter 8, verse 9 to 11. Brother, please. और मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ, रोमियो अध्याय 8 वचन 9 से 11। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। So the Holy Spirit is the thing that we need in this new covenant. और नई वाचा में सबसे मुख्य बात है कि वह पवित्र आत्मा जिसकी हम सभी का आवश्यकता है। You can say, I will write it on my heart, I will keep it in my mind. How are you going to write it? How are you going to remember? I guarantee you, when the memory verse is given to us to remember, today we are remembered, we recite it, but the coming Sunday, do we remember it? That's a question. It's difficult to remember the memory verse, but only it just happened by the Holy Spirit. और मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि हाँ, हमारे मनों में परमेश्वर की वाचा को हम आज्ञा को हम रखेंगे, हमारे हृदय पर लिखेंगे। आप कैसे इस कार्य को करेंगे? आप कैसे अपने हृदय पर परमेश्वर की आज्ञा को लिखेंगे? हम हर रविवार को जैसे स्मरण करने वाले वचन को हम स्मरण करते हैं। आज के इस रविवार की सुबह आपने उस वचन को स्मरण किया, आपके मन में आपके दिमाग में वह बात है, लेकिन अगले रविवार तक आप नहीं उसे स्मरण कर पाएंगे। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। I will leave you with this. The last thing I will leave you with Corinthians chapter 2 verse 20. और मैं एक आखिरी वचन के साथ मैं छोड़ना चाहता हूँ, गलातियों अध्याय 2 वचन 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। God bless you all. You have understand. नए करार के विषय में जो भी हमने सुना उसके लिए हम प्रभु की महिमा करते हैं। और ये एक बहुत ही ऊंचा स्तर में प्रभु ने हम सबको लाया है, जहाँ हमें समझना है कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। हमने सुना कि इजरायली लोग को जब परमेश्वर ने वाचा दिया था तो वो वाचा वो नहीं कर पाए। जैसे हम रोमन्स अध्याय 3 में पढ़ सकते हैं कि वहां पर लिखा है कि एक भी परमेश्वर का खोजी नहीं था, एक भी परमेश्वर से प्रेम करने वाला नहीं था, एक के अंदर भी परमेश्वर का भय नहीं था, सब के सब भटक गए थे। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये सब वाचा देने के बावजूद मैं चाहता था कि ये मेरे नजदीक आए, दरवाजा बंद तो परमेश्वर चाहता था कि मेरे लोग मेरे नजदीक आए,
लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो गया था कि लोग ये वाचा के कारण दोषी बन गए और कंडेमनेशन में आ गए, क्योंकि वो चुक रहे थे हमेशा। और जब परमेश्वर ने ये चीज देखा तब उसने ये नया करार यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। और अब परमेश्वर कहता है, जो वाचा पहले प्रभु ने कहा था कि वो तुम्हें करना है, और जैसे हमने सुना कि अब परमेश्वर कहता है ये मैं करूंगा और ये मैं तुम्हारे हृदय में लिखूंगा और ये इसका वाचा मैं तुम्हारे साथ रखूंगा। ये परमेश्वर जब खुद कर रहा है तो वहां पर हम एक चीज देख सकते हैं, इब्रानी अध्याय 8 में वहां पर लिखा, यह उस वाचा के समान न होगा जो मैंने तुम्हारे बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल आया, क्योंकि वे मेरे वाचा पर स्थिर न रहे, इसीलिए मैंने उनकी शुद्धि न ली। प्रभु यह कहता है, ये उसके 9वें वचन में लिखा। उसके 10वें वचन में ये कहता है, प्रभु फिर कहता है कि जो वाचा मैं इन दिनों उनके साथ बांधूंगा, इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। तो परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य यही था कि परमेश्वर के हम लोग बने और वो हमारा परमेश्वर ठहरे। जो पुराने करार से हमने देखा यहाँ पर वो स्थिर नहीं रहने के कारण नहीं हो पाया था, लेकिन जब परमेश्वर नए करार में हमारे भीतर लिखता है, और परमेश्वर का मेन उद्देश्य क्या था हम देख सकते हैं। जैसे जोसेफ ब्रदर ने बांटा, वही सेम चीज मेरे मन में भी आया कि वहां लिखा है कि वो लोग को सिखाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को जानेंगे। बड़े से लेके छोटे तक सब कोई परमेश्वर को जानेगा, और यही परमेश्वर का मेन उद्देश्य था कि हम परमेश्वर को जाने। पुराने नियम में जब भी हमने देखा, एक भी व्यक्ति ने परमेश्वर को पिता कहकर नहीं पुकारा है, हर एक ने परमेश्वर कहकर पुकारा है, प्रभु कहकर पुकारा है। लेकिन जैसे नए करार में यीशु मसीह ने पहली बार उसे परमेश्वर के अलावा पिता कहा, और यही हम सीख सकते हैं। जब हम परमेश्वर को जानेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि वो परमेश्वर से ज्यादा हमारा पिता भी है, हमारा रक्षा करने वाला, हमें संभालने वाला, हमें अकेला नहीं छोड़ने वाला, हमसे प्रेम करने वाला। तो ये हम जान सकेंगे तभी जब हम नए करार में आएंगे। जब हम पुराने करार में रहेंगे तो हमारे अंदर वही रहेगा, हमको ये पालन करना है, ये कैसा करना है, वैसा करना है, वही हमारे मन में चलता रहेगा। लेकिन जब हम नए करार में, जब प्रभु हमारा एंट्री कराता है, जब हम जानते हैं यीशु मसीह को और उसके हर एक कार्यों को, तो हम समझ सकते हैं कि नए करार में लाने के बाद उसका एक ही इच्छा है कि हम उसको जाने और दिन प्रतिदिन जाने। ऐसा नहीं कि एक दिन आए और हम समझे, लेकिन दिन प्रतिदिन उसको हम जाने और उसमें बलवंत हो और वो हमारा परमेश्वर ठहरे और हम उसके लोग। तो ये नए करार में लाइफ जीना बहुत ही एक्साइटिंग लाइफ है, जो प्रभु हम सबको देना चाहता है और उसमें हम सबको बढ़ाना चाहता है। और ये प्रभु का ही अनुग्रह, कृपा है। हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी सामर्थ्य नहीं, ये प्रभु का दया है, जो उसने देखा कि हम नहीं कर पा रहे और तब उसने अपनी कृपा हम पर प्रकट की। तो प्रभु की हम बहुत आभार माने कि ऐसे एक स्तर पर प्रभु ने हमें लाया और हर दिन वो हमें चुनौती देता है उसके जैसा और बनने के लिए। उसके लिए प्रभु हम सबकी सहायता करे आगे आने वाले दिनों में, और इस नए करार में हम बढ़ते जाए और उसकी महिमा का कारण। आमीन।